Good morning, students. From today, again we are starting the same chapter, electricity. Earlier, the notes were provided to you. Now, we will try to simplify the things in a better way. The first thing is, as the name is given, electricity. What is electricity? Actually, electricity, it is also the form of energy. But how will you produce electricity? As we know that energy is neither created nor destroyed, it is transformed from one form to another form. Similarly, electricity is also transformed from other sources. We can change chemical energy into electrical energy. We can change solar energy into electric energy. We can change physical or mechanical energy into electricity. So electricity is also one of the form of energy. Now, why do we use the term electricity? Because the word electricity is derived from a Greek word called electron, and the word electron means amber. Amber is a substance, this is a transparent fossil resin. Resin is glue type material. So this transparent fossil resin, this have a property to attract things, attractive property of amber. And due to the attractive property, the name was given electricity. And it was discovered in early 600 BC. Now, the basic fundamental quantity in electricity is charge. So charge is a characteristic property of matter, due to which matter experiences electric force. If an object is having charge, it can apply force. It may be of attractive or repulsive nature. So it may apply force on other body having charge. So if two bodies are having charges, they will exert electric force on each other. This force may be attractive or this force may be repulsive. It depends on the nature of charges. So we can classify charges into two categories. One is positive charge and other is negative charge. A proton carries positive charge, whereas an electron carries negative charge. Now, we know that atoms are electrically neutral. So when a body loses electron, it gets positively charged. But when a body gains electron, it gets negatively charged. So obviously object get positively charged or negatively charged, it is just because of loss or gain of an electron. Okay. So let us understand it by this example. When glass rod is rubbed with silk, heat is produced due to friction. Obviously friction is there between glass rod and silk. Heat is produced. The electrons in glass rod and silk, they will absorb this energy. But in glass rod, electrons are loosely bound. So by absorbing heat, electrons from glass get transferred to the silk. इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से मूव करेंगे और वो किस पर जाएंगे, सिल्क पर जाएंगे, बिकॉज सिल्क इज स्टेबल. सो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. सो इन दिस वे ग्लास एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज and silk acquires equal amount of negative charge. Okay. Now, unit of charge is coulomb. It is represented by symbol C. The charge on an electron or proton, magnitude wise electron or proton same amount of charge carry करते हैं, and this value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now, these are the smaller units of charge. Millicoulomb 10 to the power minus 3 coulomb, microcoulomb 10 to the power minus 6 coulomb, nanocoulomb 10 to the power minus 9 coulomb, and picocoulomb 10 to the power minus 12 coulomb. Coulomb is SI unit of measurement of charge. Now, property of electric charges. Like charges means similar charges, they repel each other.
while unlike means opposite charges, they attract each other, means positive and negative attract each other, both positive or both negative they will repel each other. यही बेसिक रीजन है कि जो अंबर है इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. So when two charges q1 and q2 are placed at a separation r, force between them is given by, क्योंकि एक चार्ज अगर q है दूसरा चार्ज q2 है और उनको अगर हम एक सेपरेशन r पर रखते हैं तो या तो उनमें रिपल्शन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा, बट जो भी हो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला k q1 q2 upon r square. K is a constant and its value is 9 into 10 to the power 9. q1 and q2 are values of charges, r is the separation. So we know that according to Newton's third law, equal action and reaction they are equal and opposite. Similarly q1 and q2 they exert equal and opposite forces on each other. जितना q1 q2 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय q2 ऑन q1. नाउ charges can neither be created nor be destroyed. Total charge in an isolated system remains constant. This is the conservation property of charge. Isolated means जिसका सराउंडिंग से कोई रिलेशन हो ना हो, जिस सिस्टम का सराउंडिंग से कोई रिलेशन ना हो, जहां एक्सचेंज पॉसिबल ना हो, सच सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम. तो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है. दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज 0 है, इट डजंट मीन दैट देयर इज नो चार्ज. वहां पर इक्वल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पॉसिबल हैं. सो दे नेवर destroy each other. Charges are there but their total value may be equal to 0. 3 electron plus 3 proton, total charge becomes 0, but it never means that there is no charge. Now electric charge is additive. Total charge possessed by a body is equal to algebraic sum of individual charge. Means charges को आप add कर सकते हैं, but this is not the arithmetic sum, this is algebraic sum. And in algebraic sum we generally include the polarity or nature of charge. अगर चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हम उसके साइन को इंक्लूड करेंगे, तो आप टोटल चार्ज को ऐड कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. टर्म क्वांटाइजेशन का क्या मीनिंग है? कोई भी क्वांटिटी जब एक स्मॉलेस्ट यूनिट का मल्टीपल होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि आप अपनी बुक्स के अंदर पेजेस को काउंट करें. काउंट द पेजेस इन योर बुक. यू विल से 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज एंड सो ऑन. सो 1 पेज का मल्टीपल 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, ये क्वांटाइजेशन है. सिमिलरली बहुत सारे ब्रिक्स का एक सेक्शन है, आपसे कहा जाए पिक नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो आप कितना पिक करेंगे? यू विल पिक 1 brick, 2 brick, 3 brick, 4 brick एंड सो ऑन. दिस इज द क्वांटाइजेशन. जहां जो नंबर्स हैं एक स्मॉलेस्ट यूनिट के मल्टीपल्स होते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट. ओके, सो दीज आर द क्वांटाइजेशन. लेकिन फिर भी अगर ये चीज क्लियर ना हो तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. जस्ट टेक द हीप ऑफ सैंड. आप मिट्टी का ढेर लें और आपसे ये कहा जाए पिक सम क्वांटिटी. आप कितनी क्वांटिटी पिक कर सकते हैं? एनी क्वांटिटी यू डिजायर्ड यू कैन पिक. आप कितनी भी क्वांटिटी पिक कर सकते हैं. सो द सैंड इज नॉट क्वांटाइज्ड. क्वांटाइजेशन में एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और जो वैल्यूज होती हैं वो उस स्मॉलेस्ट यूनिट का मल्टीपल्स होता है. ओके, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज 1 स्टूडेंट. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 1 का मल्टीपल, 1 का मल्टीपल 2, 3, 4, 5 एंड 6. लेकिन हीप ऑफ सैंड से जब आप सैंड पिक करते हैं देयर इज नो स्मॉलेस्ट यूनिट. ओके, हम एक मैक्रो लेवल पर देख रहे हैं, देयर इज नो स्मॉलेस्ट यूनिट. तो आप जो क्वांटिटी पिक करेंगे वो कितनी भी पॉसिबल है. सो व्हेन the total quantity in such a way that it is integral multiple of a small quantity, then it is said to be quantized. तो चार्ज भी यहाँ क्वांटाइज्ड है. कोई ऑब्जेक्ट कितना चार्ज पजेस करेगा, that charge possessed by a body is equal to
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक की नॉलेज के हिसाब से जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज पॉसिबल है? इट मे बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। Means 1.2 electron, 1.5 electron, 1.7 electron, 2.3 electrons. These values are not possible because charge is quantized and the minimum value of charge is electron. So the number of charge present on an object, it is 1 electron, 2 electron, 3 electron and so on. So if n is the number of electron, then total charge q is equal to plus minus ne. प्लस माइनस इसलिए लिया है क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस लें और नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लें। ओके, सो अगर मैं n की वैल्यू फाइंड करूं, n इज इक्वल टू q, q इज द टोटल चार्ज, e इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो n की वैल्यू है इट मस्ट बी एन इंटीजर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कोई चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर पॉसिबल है या नहीं है, तो उस चार्ज को आप e से डिवाइड कर दें। अगर n की वैल्यू एक इंटीजर आती है देन दैट चार्ज इज पॉसिबल, और अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं है इट मींस दैट चार्ज इज नॉट पॉसिबल। n इज एन इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, नाउ क्लासिफाई द मटेरियल्स। Materials are generally classified into two categories. One is known as conductors and insulators. ये इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से है, electrically conductors and electrically insulators. So what are conductors? All those substances through which charges can flow are known as conductors. Means जिनके through charges का flow possible है, that all those substances are treated as conductors. For example, all metals. एक्वा सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, साल्ट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन मिलता है दैट इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। जैसे वाटर के अंदर आप सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व कर दें, अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व कर दें, अमोनियम सल्फेट डिसॉल्व कर दें, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व कर दें। सो दीज आर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनाइज्ड गैसेज, जब गैसियस मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं देन they can conduct electricity, that is why they are treated as conductors. हम जिन metals को study करेंगे they are metals. We are generally dealing with metals. Now all those substances through which charges cannot flow they are known as insulators. तो insulators के through charge का flow possible नहीं है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? Insulators. Glass, dry wood, plastic, pure water, gases, they are treated as insulators. Okay, now what is the basic cause of conductivity? Actually conductivity के लिए जो basic requirement है वो है free electrons. Substance के अंदर free electrons हैं या नहीं हैं? Conductors have free electrons due to which charges can easily pass through a conductor. ये जो free electrons हैं ये चार्ज को कैरी करने का काम करते हैं और ये चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी करते हैं, दैट इज वाई दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी। तो जो भी कंडक्टर्स हैं दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस, ड्यू टू विच चार्ज कैन इजीली पास थ्रू ए कंडक्टर। बट इन इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से बाउंड है न्यूक्लियस से, दे कैनॉट मूव, और अगर वो मूव नहीं कर सकते तो चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं है, हेंस चार्जेस कैनॉट पास थ्रू देम, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में ही एक कैटेगरी आती है दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक्स। सो डाइलेक्ट्रिक्स आर जनरली इंसुलेटर्स बट दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी, बट दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी बाय कंडक्शन। कंडक्शन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक मीडियम के थ्रू, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, बट दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक फोर्स विदाउट कंडक्शन। मींस विदाउट कंडक्शन वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फोर्स को ट्रांसमिट कर देते हैं, इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, इसलिए इस ऐसे इंसुलेटर्स को आप क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक्स। अदरवाइज डाइलेक्ट्रिक्स आर जनरली इंसुलेटर्स। Now, in this chapter electricity, we can classify
broadly electricity into two parts. One is called static electricity or electrostatics. Second is called current electricity. Static means at rest. तो अगर चार्जेस रेस्ट में हैं तो ये सब चीजें आप फिजिक्स के जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. जब चार्जेस रेस्ट पर हैं वो कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, क्या इंटरेक्शन होता है, ये सभी कुछ स्टडी करना ये जिस पार्ट में है दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं. बट करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट मीन्स फ्लो एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस. सो फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन कब होता है? जब चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. दैट फ्लो विल कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. चार्ज है तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो. सो करंट मीन्स फ्लो ऑफ एनीथिंग, बट इलेक्ट्रिसिटी है तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज. सो फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट है उसके क्या क्या फंडामेंटल्स हैं, उस करंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये सभी कुछ हम स्टडी करते हैं इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज नॉन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. अभी आपको बताया द फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो द इलेक्ट्रिक करंट क्वालिटेटिवली डेफिनेशन वाइज हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक चार्जेस किस रेट से फ्लो कर रहे हैं दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट. इफ Q चार्जेस फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन टाइम t then I is equal to Q upon T. Now चार्जेस ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो से सेटअप होगा. इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो in time t, so Q is equal to NE upon T. Okay, so Q is equal to IT. I is equal to Q upon T है, T से मल्टीप्लाई कर दें तो Q is equal to I into T. Now, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. ये पता है आपको, एम्पियर एक फेमस साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऑनर में इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को हमने क्या लिखा है, एम्पियर. नाउ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर? I is equal to Q upon T. अगर हम Q को 1 कूलाम लें and the time is 1 second, then 1 upon 1 current becomes 1 ampere. So if 1 coulomb charge flow through a conductor in 1 second, then current is said to be 1 ampere. अगर आप 1 ampere करंट को डिफाइन करते हैं तो 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड में थ्रू ए कंडक्टर, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर. नाउ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? आप करंट की डायरेक्शन को कैसे डिसाइड करेंगे? सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड एज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? Electrons always flow in a direction opposite to direction of electric current. Positive और negative charges हमेशा opposite direction में move करते हैं. And so we are taking the direction of positive charge as the direction of electric current. So electron will move in a direction opposite to direction of conventional current. Now you can see it through this diagram. These are the positive charges and positive charges are flowing in this direction. So the direction of conventional current is along the direction of flow of positive charge. Electrons, they are moving in a direction opposite to conventional current. So this is the direction of electric current. Now the question arises, how will you measure electric current? Electric current is measured using a device called ammeter. It is always connected along the flow of electric current in circuit. जब आप सर्किट का फॉर्मेशन करेंगे तो जिस पाथ के अलोंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसी पाथ के अलोंग आप इस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं
and such combination is known as series connection or series combination. Now, what are the properties of an ammeter? An ammeter offers negligibly small resistance during flow of electric current. The word resistance means opposition, resist और oppose to flow, तो इसका मतलब ये हुआ negligible small, ये करंट के फ्लो को अपोज नहीं करता. आइडियली कहा जाए, आइडियल एमीटर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस. एक्चुअली आइडियल एमीटर होता नहीं है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा. कंडक्टर है बट सुपर कंडक्टर्स नहीं है, सो ऑब्वियसली एवरी मेटल हैज ए स्मॉल रेजिस्टेंस. तो एमीटर भी एक स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बट आइडियली इट शुड नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस. आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, बट फिर भी जो एमीटर हम यूज करते हैं दे ऑफर्स ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Symbol for ammeter. In whenever we draw an electric circuit, we will use the devices with the help of a symbol. Ammeter is represented by letter A, plus and minus are terminals of that device. So this is the symbol for ammeter. Now these are three numericals you have to solve based on the formulas or the content studied up to this level. You can note down these questions and solve them in fair copy. आपको ये नोट्स फेयर कॉपी में लिखने हैं और मीनवाइल जहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं वहीं पर आप इनके सॉल्यूशंस को भी कर सकते हैं. और यू कैन सेंड द सॉल्यूशंस ऑन माय व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो.